அந்த பூஜையினுடைய விளக்கங்களை எல்லோருக்கும் அறியும் வண்ணம் எளிமையாக குருநாதர் சொன்ன வழியில் மாணவர்கள் எடுத்து உரைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த நிலையில் இப்பொழுது 4 துவாரங்களினுடைய பூஜையினுடைய விளக்கங்களை 5ஆம் பேட்ச் மாணவர்கள் இங்கு எளிமையாக கூறிய பிறகு பூஜை நடைபெறும். தட்சிணாமூர்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஹர நம பார்வதி நாடுடைய சிவனே போற்றி. ஓம் அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானன மகர்நிஷம் அநேகதந்தம் பக்தானாம் ஏகதந்தமுபாஸ்மஹே. ஜெய் சித்தி விநாயக மகராஜ் கி ஜெய். எல்லாம் வல்ல உமையோர் பாகனின் திருவருளும் குருவருளும் துணை நிற்க சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாய் நகர் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலய அஷ்டபந்தன ஸ்வர்ணபந்தன மகா கும்பாபிஷேக வைபவம் இனிதே நடைபெற்று வருகிறது. இதிலே இன்றைய தினம் 6ஆம் கால யாகசால பூஜை, மண்டப பூஜை, துவார பூஜை பற்றின ஒரு சில சுவாமி மூலஸ்தானத்தில் கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அவரை கலாகர்ஷணம் பண்ணி எடுத்துட்டு வரோம். சுவாமி இதுல இருக்காரு, ஒரு பிம்பத்துல இருக்காரு, ஒரு சித்திரத்துல இருக்காரு. அவரை ஒரு கரத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், கலாகர்ஷணம் பண்றோம். சுவாமி இதுக்கு வாங்க, இந்த கடத்துக்கு வாங்க, நான் அவளை கலாகர்ஷணம் பண்ணி அவளை எடுத்துட்டு வரோம். எடுத்துட்டு வந்து இங்க பிரம்மாண்டமா பஞ்சாசன வேதிகை எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. விதி கிரமமா அழகா ரெடி பண்ணியிருக்க அந்த பஞ்சாசன வேதிகையில, இந்த வேதிகையில அந்த சுவாமியை கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். அப்ப கர்ப்ப கிரகத்துல சுவாமி கூட அவளோட ஆவரண தேவதையும் இருப்பான். சுவாமிக்கு பஞ்ச ஆவரணம் இருக்கு, ஆவரண தேவதையும் சுவாமி கூட இருப்பான். அப்ப சுவாமி மட்டும் வந்தாருன்னா நல்லா இருக்காது இல்லையா, கூட இருக்கவா அவளும் சேர்ந்து வரணும்ல. அதற்காக தான் நம்ம இந்த யாகசாலையை சுற்றி சப்த விம்சத்தின்னு சொல்லப்படுற 27 கலசம் வச்சிருக்கோம். இந்த 27 கலசத்திலையும் சுவாமியோட ஆவரண தேவதையை வந்து நம்ம ஆவாகனம் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு புஷ்பம் சாத்தி. ஏன்னா சுவாமியோட அவா கெஸ்ட், சுவாமி பெரிய கெஸ்ட், நமக்கு அவா கூட வர்றவாளும் நமக்கு கெஸ்ட் தான், அவளையும் நம்ம கவனிச்சுக்கணும்ல. அதுக்காண்டி அவளுக்கும் சப்த விம்சத்தின்னு சொல்லப்படுற இந்த 27 கலசம் வச்சு அவளுக்கும் நம்ம பூஜை பண்றோம். இப்ப கர்ப்ப கிரகத்துல சுவாமி இருக்கார். இப்ப நம்ம அவர் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு முக்கியமான கெஸ்ட்ன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அவர் கர்ப்ப கிரகத்துல இருந்து நம்மளை பார்க்கறதுக்கு வெளியவே வரார். 12 வருஷம். இப்ப இதுக்கப்புறம் 2037 தான் வருவார் அவர் வெளியே. இப்ப 12 வருஷம் கழிச்சு 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வர்ற அந்த கெஸ்ட்டை நம்ம எவ்வளோ ஒரு இதோட நம்ம அவரை கவனிச்சுக்கணும், எவ்வளோ சந்தோஷப்படுத்தணும், எவ்வளோ வேதிகை ரெடி பண்ணியிருக்க, அந்த யாகசாலை ரெடி பண்ணியிருக்க அந்த ஒரு விதம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு. சுவாமி வந்தா இப்ப அந்த சுவாமியை வச்சு நம்ம அந்த சுவாமியை சுற்றி இருக்கிற அந்த துவாரங்களை வந்து பூஜை பண்ணணும். ஒரு சுவாமி இருக்காரு, ஒரு வேதிக்கு வந்துட்டாருன்னா, கர்ப்ப கிரகத்தை வெளியே வந்துட்டாருன்னா அவருக்கு நம்ம அந்த துவாரங்களை நம்ம வந்து பூஜை பண்ணணும். அப்ப இந்த துவாரங்களோட தத்துவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிவர்த்தி கலை, பிரதிஷ்டா கலை, வித்யா கலை, சாந்தி கலை, சாந்தி தீர்த்த கலைன்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த நிவர்த்தி கலைங்கிறது நம்மளோட அறியாமை, நம்ம மனசுல இருக்கிற சங்கடம், துஷ்டம், இதை எல்லாத்தையும் நம்ம நிவர்த்தி பண்ணி, அதாவது நீங்க இந்த பூஜை கிரமம் அதெல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா, ஆச்சாரியா வர பூஜை பண்றா, இதெல்லாம் நமக்கு ஏதோ தெரியாத விஷயம். நம்ம தீபாவளி காமிச்சா நம்ம பார்த்துப்போம் யாரும் நினைச்சுக்கிறோம்னா, நம்ம வாழ்க்கையில தான் இங்க நம்ம பூஜையா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தினம் தினம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, என்ன பண்ண இருக்கோமோ, என்ன பண்ணணுங்கிறத தான் நம்ம இந்த யாகசாலையில நம்ம பூஜையா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல ஒரு சின்ன ஒரு சாதாரணமான விஷயம் தான், உங்களுக்கே அது ஆச்சரியமா இருக்கும், பிரியா அப்படின்னு. அப்ப இந்த நிவர்த்தி கலைங்கிறத வந்து நம்ம பின்னாடி இருக்கிற துவாரத்துல, பশ্চিம துவாரத்துல பூஜை பண்ணுவோம். நிவர்த்தி கலைங்கிறது நம்மளோட அறியாமை, மனசுல இருக்கிற சங்கடம், இதை எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணிட்டு அழிச்சுட்டு நம்ம வந்து சுவாமி கிட்ட ஐக்கியமாகிறதுக்கான அந்த ஒரு கலை தான் நிவர்த்தி கலை. அப்ப அந்த நிவர்த்தி கலை வந்து நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிட்டு மேல வந்துட்டோம், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும், ஒரு பேஸ்மெண்ட் போட்டு அதை உறுதியா நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு பிரதிஷ்டான உறுதின்னு அர்த்தம். அதை பிரதிஷ்டா பண்ணி அதை நல்லா உறுதியா நம்ம வந்துட்டோம், சுவாமி தான் நமக்கு முக்கியம், நம்ம தெய்வ காரியத்துல நம்ம ஈடுபட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பிரதிஷ்டா கலை இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ். அதை மெயின்டைன் பண்றத வந்து மேல வந்த அந்த மேல வந்த விஷயத்த நம்ம மெயின்டைன் பண்றது பிரதிஷ்டா கலைன்னு அர்த்தம். அதுக்கு அடுத்தது வித்யா கலை, வித்யான ஞானம்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த பிரதிஷ்டா கலை அந்த மேல வந்த அந்த ஒரு நிலையில இன்னும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு சுவாமியை பத்தி, சுவாமி அவருக்கு இப்படி பூஜை பண்ணணும்,
அப்படின்னு சுவாமியை பத்தின ஞானத்தை நம்ம அபிவிருத்தி பண்ணிக்கணும். அது வந்து வித்யா கலைன்னு பேரு. அதுக்கடுத்து சாந்தி கலை. இப்ப இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு ஞானம் கிடைச்சிருக்கு, காசு பணம் இது எல்லாம் இருக்கு நமக்கு. இதெல்லாம் இருந்து நம்ம குருநாதர் அடிக்கடி சொல்லுவார், காசு பணம் நிறைய இருக்கு, என்ன பிரயோஜனம்? படுத்தா ஒரு 2 நிமிஷத்துல தூக்கம் வரணும் நமக்கு. என்ன படுத்தா நிம்மதியான தூக்கம் வரணும் நமக்கு. இப்ப இதெல்லாம் அறிஞ்சுட்டு நம்ம இதெல்லாத்தையும் நம்ம மனசுல வச்சுட்டு அடுத்து சாந்தி கலை இதெல்லாம் இது பண்ணி ஐக்கியம் ஆயிக்கிறது சாந்தி கலைன்னு பேரு. இதுக்கு அடுத்த கலையா இந்த 4 வாரத்திலே இந்த 4 பூஜை வந்துருது. இதுக்கு அடுத்த கலை சாந்தி தீத கலை. சாந்திய அதீத, அதீதம்னா அதிகம்னா. இப்ப இந்த சாந்தி கலையே தாண்டின மிஞ்சின சுவாமியோட ஐக்கியமாகிற அந்த ஒரு கலை வந்து சாந்தி தீத கலைன்னு பேரு. அது இந்த சுவாமி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்க அந்த கலசத்துக்கு மேல இருக்க விமானத்துல நம்ம அந்த கலையை பூஜை பண்றோம். இப்படியாக இந்த பஞ்ச கலையில எல்லாமே ஒரு சேருது. மந்திரம், நம்ம யாகசாலை சொல்ற மந்திரம், பஞ்சபூதம், 36 தத்துவம், இது எல்லாத்தையும் சுருக்கமா சொல்ற அந்த ஒரு விஷயமா இந்த பஞ்சகலை வந்து இருக்கு. இப்ப இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 4 வாரத்திலையும் 4 வேதங்கள் பூஜை பண்றோம். ரிக்வேதம், எஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம். இந்த 4 வேதத்தையும் நம்ம 4 வாரத்திலையும் பூஜை பண்றோம். அப்ப இதுக்கு வந்து அந்த பூஜை பண்ணது மட்டும் இல்லாம அந்த சதுர்வேதமும் இங்க வேத பிராமணா உட்காந்து பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சதுர்வேதம் பாராயணம் மட்டும் இருக்கு. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சுவாமி பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டோம். அதுக்கடுத்து அந்த முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, சுவாமி கூட இருந்த ஹெல்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இப்ப அவெல்லாம் வந்து அந்தந்த இடத்துல இருக்கா, அவ எந்தெந்த இடத்துல இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுவாமிக்கு மொத்தம் 5 ஆவரணம். பிரதமாவரணம், தித்தியாவரணம், திருத்தியாவரணம், சதுர்த்தாவரணம், பஞ்சமாவரணம். பிரதமாவரணங்கிறது சுவாமியோட அங்கங்கள், பார்ட்ஸ், சுவாமியோட பகவானோட பார்ட்ஸ். அதை வந்து நம்ம சுவாமிகிட்டே பூஜை பண்ணிடுறோம். ஈசான, தத்புருஷா, குஹர, வாமதேவ, சத்யவிதம், இதெல்லாம் நம்ம சுவாமிகிட்டே பூஜை பண்ணிடுறோம். தித்தியாவரணங்கிறது சுவாமியோட அட்டதிப்பாளர்கள், அதாவது வரதாயமா வீராயமான்னு சொல்லி நம்ம விக்னேஸ்வரருக்கு இவெல்லாம் அட்டதிப்பாளர். இவா வந்து நம்ம சுவாமியை சுத்தி இருக்கிற அந்த 8 கலசத்திலையும் இவாளை நம்ம பூஜை பண்ணோம். அதுக்கடுத்து சுப்ரபூதாயமா, சுவக்ராயமா சொல்லி தித்தியாவரண தேவதை, இவா எல்லாரையும் நம்ம அந்த சுத்தி வச்சிருக்க கலசத்துல பூஜை பண்ணிடுறோம். அப்புறம் இந்திராதி அஷ்டதிப்பாளர்கள், அதுக்கடுத்து அவ வச்சுட்டு இருக்கிற ஆயுதம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம யாகசாலை இருக்கிற மிச்ச இடங்கள்ல நம்ம பூஜை பண்ணிடுறோம். இப்ப இந்த யாக பூஜையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சூரிய பூஜை அப்படிங்கிற ஒரு பூஜையை நம்ம மூலியமா தான் நம்ம இந்த யாகத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம இந்த பூமி சுழல்றதுக்கு, இந்த பூமி இயங்குறதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது சூரியன், சந்திரன் மட்டும்தான். இப்ப இவாளை வந்து நம்ம மெயினா வச்சுட்டு தான் நம்ம அடுத்த பூஜையை பண்ணணும். அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த சூரிய பூஜை பண்றோம். சூரிய பூஜை, சோம பூஜை பண்ணி சூரிய பூஜை பண்றோம். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அவ அஷ்டதிக்பாவ, அவளோட ஆயுதம், இது எல்லாத்தையும் பூஜை பண்றோம். யாகத்தை ஆர்கனைஸ் பண்றவரா யாகேஸ்வரரை பூஜை பண்றோம். மகாலட்சுமியை பூஜை பண்றோம். இவா எல்லாரையும் பூஜை பண்றோம். இந்த கலைகள் 4 கலைகள் நான் முதல்ல சொன்ன அந்த 4 கலைகளையுமே ஒவ்வொரு கலசம் வச்சு ஒவ்வொரு வாரத்திலையும் பூஜை பண்றோம். இப்படியாக இந்த பூஜைகள் நடைபெற்று இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் ஒவ்வொரு இதுலையும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம அது ஒரு சின்ன விஷயம் தான், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும், அவ்வளவுதான். இப்போ இப்படியாக இந்த மண்டப பூஜைகள், துவார பூஜைகளை பண்ணி எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்ப அடுத்து இந்த மண்டப பூஜை ஆரம்பிச்சு இந்த பூஜை நம்ம பண்ண போறோம். எல்லாரும் நல்லா அமைதியா உட்கார்ந்து இந்த பூஜையை தரிசி. நம பார்வதி பதஜே. सभी भक्तों का नमस्कार। सिद्धिविनायक आलय में कुंभाभिषेक पूजा चल रहा है। सभी लोग मुझे पहले माफ करना दीजिए, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है, इसलिए आप कुछ माफ करना दीजिए। हमारा भगवान महाविघ्नेश सिद्धिविनायक को हम कला दर्शन करके आप अभी आ गया, यागशाला आ गया हमारा भगवान। उसको अर्चना करने के बाद उसका असिस्टेंस है ना, अभी उसको भी हम पूजा करना चाहिए। इसके लिए हम यागशाला के अंदर कुछ कलशा प्रतिष्ठा कर रहे हैं और उसको भी पूजा कर रहा है। इस तरह के हम पूजा चल रहा है हमारा पूजा। इसके बाद हमारा जीवन को रन करने का एक मंत्र ये यागशाला में पूजा कर रहा है, उसको निवृत्ति कला कहता है। निवृत्ति कला तो हमारा कृत में कष्ट के ना, उसको निवृत्ति करना चाहिए। इसके लिए हम उसको निवृत्ति कला कहता है, उसको पूजा करता है। और हमारा कष्ट निवृत्ति होने के बाद
हमारा स्थान है ना उसको स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके लिए हम प्रतिष्ठा कला को पूजा कर रहे हैं और उसके बाद विद्या कला पूजा कर रहे हैं। विद्या मीन्स ज्ञान, ज्ञान है, उसको हम पूजा करना चाहिए, उसको विद्या कला कहता है। और वो विद्या होने के बाद हमको पैसा ये होने तो प्रॉब्लम नहीं, हमको शांति होना चाहिए। पैसा मुख्य नहीं है, हमको शांति होना चाहिए, हम श्रद्धा होना चाहिए। इसके लिए हम शांति कला को पूजा कर रहे हैं और उसका पूर्व भाग हम शांति कला पूजा कर रहे हैं। वो 4 कला के प्रधान कला शांति कला कहता है। अतीता मीन्स अपर, उत्तर, वो ऊपर, वो शांति कला को हमारा भी घट का विमान है ना उसको हम पूजा करता है। इसका हम जीवन को हम शुद्ध रखना के लिए ये पूजा कर रहा है। और उसके बाद स्वामी का आवरण है ना, आवरण देवता पंच आवरण है, उसको हम प्रतिष्ठा करने वो कलशा में हम पूजा कर रहे हैं। इस तरह हमारा पूजा चल रहा है हमारा गुरु जी के आशीर्वाद से। हमारा गुरु जी तमिलनाडु से आ गया है, क्योंकि आपके लिए, आपको प्रार्थना के लिए, शुद्ध करने के लिए वो आ गया है। वो भी नहीं, दिने दिने अनुष्ठान शिव पूजा करने वाला 40 पंडित जी भी आ गया है, पढ़ने वाला 10 मानव का भी आ गया है। ये 50 वाला आपके लिए पूजा करने के लिए ये आ गया है। हमारा गुरु जी तमिलनाडु में पूजा कर रहे हैं, पूजा करने बनाकर पंडित को बन रहा है, बना रहा है तमिलनाडु में। अभी 50 वाला वहाँ पढ़ रहा है और उसको हमारा पाठशाला को अभिवृद्धि करने के लिए हम बहुत बड़ा पाठशाला बनाने का है। उसका लैंड भी खरीद लिया और पूजा भी, भूमि पूजा भी चल गया। अभी हम बड़ा 200 मानव का पढ़ने के लिए हम बड़ा पाठशाला बन रहा है। हमारा गुरु जी से पढ़ाकर मानव का दुनिया के सभी आलय मंदिर में पूजा कर रहा है। अभी 700 पंडित वाला है दुनिया के सब मंदिर में, वो भी वो से 40 वाला आ गया है अभी आपके लिए पूजा करने के लिए। इस तरह हमारा पूजा चल रहा है। हमारा पंडित जी, प्रधान पंडित जी हमारा गुरु जी के आशीर्वाद से धन्यवाद। आप आराम से पूजा देखें। नमः ओम हा गजाय नमः पश्चिमजाकामूले ओम हा महल्लोकाय नमः जगन्याय नमः बृहस्पतये नमः पूर्व पश्चिम मध्य भागेषु ओम गं गणपतये नमः ओम सरस्वती नमः ओम महालक्ष्मी नमः पूर्वजाकाय ओम हां सिद्धवे नमः पश्चिमजाकाय सरस्वती नमः दक्षिणशाखाय ओम ह्रीं गौतमी नमः उत्तरशाखाय ओम ह्रीं नर्मदाजी नमः द्वार दक्षिणपदाकाय ओम हां भूतसञ्जीवन्यै नमः द्वारोत्तरपदाकाय ओम हां अमृतसञ्जीवन्यै नमः अतो दुम्परे अस्त्रादद्वारपाल नमः ओम हां यवर्गाय नमः हां शवर्गाय नमः देवतात्वेन ओम हां निवृत्तिकलासनाय नमः निवृत्तिकलामूर्तये नमः ओम हां निवृत्तिकलादि नमः आवाह्य आवाहनादि फलं निवेद्य अर्घ्यं दत्त्वा दक्षिणकुम्भे अज्ञामणः प्रोक्ष्य सहस्राय नमः अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः ओम हां मूषिकासनाय नमः मूषिकमूर्तये नमः मूषिकाय नमः ओम हां प्रपज्ञाय नमः ओम हां भार्गवाय नमः पूर्वशाखामूले ओम हां तपोलोकाय नमः ओम हां प्रतापाय नमः ओम हां शनैश्चराय नमः पश्चिम पूर्व मध्य भागेषु ओम गं गणपतये नमः ओम सरस्वती नमः ओम महालक्ष्मी नमः पश्चिमशाखाय ओम ताप्ती नमः पूर्वशाखाय ओम पयोज्ञी नमः द्वार पश्चिमपदाकाय ओम हां धनताय नमः द्वार पूर्वपदाकाय ओम हां श्रीप्रदाय नमः अधो दुम्बरे ओम हस्राज द्वारपालाय नमः ओम तवर्गाय नमः ओम पवर्गाय नमः ओम अधिदेवतात्वेन ओम विष्णवे कारणेश्वराय नमः हरिणात्वेन ओम हेम महादेववृक्षाय नमः द्वारोर्ध
कोणध्वजे ओम हां सुमुखाय नमः ईशान कोणध्वजे ओम हां सुप्रतिष्ठाय नमः उत्तरद्वारपालेभ्यः स्वाहा फलं निवेद्य अर्घ्यं दत्त्वा पश्चिमपदकुम्भे अर्घ्यामणा प्रोक्ष्य अनन्ताय नमः धर्माय नमः नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः सोपरि ओम ह्रीं प्रतिष्ठाकलासनाय नमः ह्रीं प्रतिष्ठाकलामूर्तये नमः प्रतिष्ठाकलादि नमः वाक्य आवाहनादि फलं निवेद्य अर्घ्यं दत्त्वा तत्पश्चिमकुम्भे अर्घ्यामणा प्रोक्ष्य ओम अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ओम हां उग्रासनाय नमः उग्रमूर्तये नमः ओम हां उग्राय नमः आवाह्य फलं निवेद्य अर्घ्यं दत्त्वा द्वारपूर्वपदकुम्भे मणा प्रोक्ष्य अनन्ताय नमः धर्माय नमः नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ओम हां कुण्डोदरासनाय नमः कुण्डोदरमूर्तये ओम नमः हां कुण्डोदराय नमः आवाह्य आवाहनादि फलं निवेद्य अर्घ्यं दत्त्वा नमः दिवाकराय नमः वेदिकायां चतुस्तम्भेषु ओम धर्माय नमः ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः इति सम्पूज्य ओम हां पृथ्वीतत्त्वाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः त्रिणेषु नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वमान् सम्पूर्णे ध्वामतः सेतोत्पट्टसमेतनेन विहिरै ताले क्रमात् भगवन् इति पूरक कुम्भक रेचक क्रमेण प्राणायामत्रयं कृत्वा स्वन्देहं भूतबीजं हरिविधिरधितं स्वाङ्कुरं कर्मोपसाकम् बाबाशेषे प्रसून यदसित सुपल पुंबिनं भोगभोग्यं न्यक्रोधं दोर्धमूलं विषयरसमवाक् साकिनं भावयेत् पादाङ्गुष्ठद्वयादारभ्य यावद्धस्ते तावद्विरूप ब्रह्मविलान्तं एकरूपा कण्डतालुद्रु मध्य ब्रह्मरन्ध्रेषु पिण्डलाभ्यां संयुक्ता पटमकलयुक्ता रूप सुम्नां संचिन्त्य एव तन्भविः योमरूपिणी शक्तिर्तरिभाव्य ओङ्कारज्वलन्तं संचिन्त्य पूरकं कुम्भकं च कृत्वा ओङ्कारे चित्तं निवेश्य वायुमूर्ध्वं विरेचयेत् ततोच्चारणेन ऊर्ध्वमुखान् ग्रन्थें च विधाय दक्षिणाध्यायेच्च पूरकवारिण विग्रहम् ओङ्कारस्काण्डस्तकावच्छिन्नं पुरुष सूक्ष्मं सिद्धभूत एकाकिनं निरामयं ध्यात्वा भगं कृत्वा वायुमूर्ध्वं प्रवर्तयन् मुद्रया आराय ब्रह्मादिकारणत्यागक्रमेण एकेनोऽध्यातेन ॐ हूं हां हं हां हूं आत्मने नमः भोक्तकर्मोपभोगार्थ वातशान्ते शिवे संयोजयेत् एवं बीजविद्याश्रेणिनः सूक्ष्मदेहशुद्धदे अखिलाङ्गेन श्रेषु आरणेषु आदिबिन्दुपर्यां ह्लां 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 निवृत्तिकलालीनः इति पूरकपूर्वं नृणायां यावत् द्वादशान्तं प्राणवायुं प्रेरयित्वा ॐ ह्रीं 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 प्रतिष्ठाकलालीनः इति पूरकपूर्वं नृणायां यावत् द्वादशान्तं प्राणवायुं प्रेरयित्वा ॐ ह्रों विद्याकलालीनः इति पूरकपूर्वं दृढनाध्यायेच्च एकेनोद्गातेन स्वरूपं विमुच्य व्यापकत्वं परमाकाशादि भूतस्वरूपं भावयेत् तङ्गन्यासं
कुर्यात् ओम होम ईशानमूर्ताय नमः मूर्धने ओम हे दत्तुर्वक्त्राय नमः वक्त्रे ओम अघोरहृदयाय नमः हृदये ओम हे महादेववृक्षाय नमः नाभो ओम सद्योजातमूर्तये नमः पादयोः ओम शान्तिकलायै नमः मूर्धने ओम ह्रीं शान्तिकलायै नमः वक्त्रे ओम ह्रोज्जाकलायै नमः हृदये ओम ह्रीं प्रतिष्ठाकलायै नमः नाभो ओम हनानर्तिकलायै नमः पादयोः ओम नमः शिरसि गणेशाय नमः मुखे नमः कर्णे वक्रतुण्डाय नमः हृदये शिरसि नमः नाभो नमः नाभो श्रेष्ठाय नमः मुखे ब्रह्मणाय नमः मुखे ब्रह्मणो नमः दक्षिणारो पते नमः वामारो ओम नमः दक्षिणजानुरे ओम नमः वामजानुरे श्रीमन् नमः दक्षिणजङ्गाय ओम ऊदिभिन् नमः वामजङ्गाय श्रीदन् नमः दक्षिणपादे साधनं नमः वामपादे ओम नमः मूर्धने नमः लाभे नमः भ्रूमध्ये नमः हास्ये नमः सुमुखे नमः गले नमः उरसि मे नमः नाभो स्वाहा नमः केडो तदनो तृणाभिविन्द स्नानानि पूजा होम समाधीनां स्नानानि संकल्प्य तत्त्वे शिवं सर्वोपचारैः मनसा संकल्प्य तत्र सूर्यायुध समप्रभे योज्य तत्त्वे ज्ञानानलम्यस्य सम्बोध्य बिन्दुदेवाय समर्प्य स्फुरत्तारकाकारम् ईश्वरं ध्यात्वा पूजयामि प्रार्थ्य स्थानशुद्धिं मातरेत् सोलिकादिभिः विघ्नानुत्सार्य दक्षिणदर्शनी ब्रह्मणेन परिगात्रेण संचिन्त्य ॐ हौं शक्तये सर्वत्रगतरक्षां भावयेत् ॐ पृथिव्यासनाय नमः पृथिवीमूर्तये नमः ॐ पृथुन्यै नमः धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धियै धीमहि प्रचोदयात् नार्घ्यं परिकल्प्य योगाङ्गमिति प्रोक्ताः यमे सिद्धान्तकेशः तस्मिन् भवेत् ॐ पृथिव्यासनाय नमः पृथिवीमूर्तये नमः ॐ पृथुन्यै नमः धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्धियै धीमहि प्रचोदयात् नार्घ्यं परिकल्प्य योगाङ्गमिति प्रोक्ताः यमे सिद्धान्तकेशः तस्मिन् मूर्ति ब्रह्मपञ्चक नेत्र मूलेन च सम्पूज्य देनमुद्रया वौषणन्तमूलेन प्ररोचयेत् प्रमुञ्चधन्वनस्त्वमुपयोराग्नियोज्य
भैया ओके ये मोबाइल वरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वरदकण्ठे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे दण्डकारण्यशकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने श्रीमती क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्तर्तौ मकरमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासर संयुक्तायां पूर्वप्रोष्ठपद नक्षत्र संयुक्तायाम् एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां चतुर्थ्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वार परमेश्वर विलाय सिद्धिविनायक प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य सकल भुवन सृष्टि स्थिति संहार तिरोभव अनुग्रह पंचकृत्य कारणस्य भगवतः परमेश्वरस्य उमा महेश्वरस्य लक्ष्मी नारायणस्य इष्टदेवता कुलदेवता अनुग्रह प्रसादेन सिद्धिलक्ष्मी बुद्धिलक्ष्मी समेत वरसिद्धि विनायक स्वामिनः वल्ली देवसेना समेत शिवसुब्रह्मण्य स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती त्रिगुणात्म स्वरूपिणी महा राजराजेश्वरी अनुग्रह प्रसादेन अस्माकं सकुटुम्बानां सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं कुम्भाभिषेक षष्ठकाल याग पूजा सेवार्थं आगतानां सर्वेषां भक्तजनानां सर्व अभीष्ट सिद्ध्यर्थं विशेषतः त्रिपुरापूजास्य अन्वयनामधेयस्य पूर्वफल्गुने नक्षत्रे सुमरासूजादयः अलग्मेल्मङ्गैरास्याः पुषं पुष्यनिष्ठे गणरासूजातस्य अहिन नीलवरस्य नामधेयस्य पुष्यनिष्ठे गणरासूजातयः अमुदिनीनाथ्याः कुमारस्य कुमार्याश्च अस्माकं सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वमङ्गल अवाप्त्यर्थम् आरोग दृढगात्र सिद्ध्यर्थं சரவணம் குரு யாரா இருக்காரா கமிட்டிக்கார பேர் ஒரு பேரா சொல்லுங்க நான் குடும்பத்தை சொல்லிடுறேன் வெங்கட சுப்பிரமணியன்
वेंकटसुब्रह्मण्य शर्मणः सहकुटुम्बस्य पट्टाभिराम शर्मणः सहकुटुम्बस्य चंद्रमौळीश्वर शर्मणः सहकुटुम्बस्य सहकुटुम्बस्य श्रीनिवासन नामधेयस्य ஏன்னா நேற்றுக்கு ஒய்ஃபு பேரே ஞாபகம் இல்லை. நான் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். கார்த்திகேயன் सहकुटुम्बस्य मणिकण्ठन् सहकुटुम्बस्य जातकवशात् गोचाररीत्या च जन्मनक्षत्रे जन्मराशिवशात् नामनक्षत्रे नामराशिवशात् द्रेक्काणवशात् होरावशात् कालवशात् कालतः उपद्रववशात् नवांश द्वादशांश त्रिंशांशवशात् अंगग्रहवशात् भावग्रहवशात् नीचग्रहवशात् शत्रुग्रहवशात् ये ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त अतिशयित शुभफल प्रदातृत्व सिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः शुभ इतरस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां सैः क्रियमाण करिष्यमाण सूचित भावित आगामि वर्तमान दुष्ट अरिष्ट परिहार द्वारा शुभ एकादश स्थान फल सूर्य ग्रह प्रसादेन मनसि संकल्पित सकल कार्येषु निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं शिवसुब्रह्मण्य स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन वंशाभिवृद्ध्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता प्रसादेन कुटुम्बक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं कुटुम्बे नित्यमंगल नित्यकल्याण नित्यश्री सौशील सौलभ्य सौहार्द सौमनस्यादि सकल संपदे अवाप्त्यर्थं कुमार कुमारीणां विद्यापारंगतत्वपूर्वक सद्उद्योग प्राप्ति पूर्वक सत्येक स्थाने विवाह आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं पौत्र दौहित्रादि वंश अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां दीर्घ सौमंगल्यता सिद्ध्यर्थं कुटुम्बक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं मानव मानवीनां सकल विद्या पारंगता सिद्ध्यर्थं काले काले सुवृष्टि प्राप्ति द्वारा कृषि बले सर्वसस्याभिवृद्ध्यर्थं धान्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वदा सर्वत्र सुभिक्ष प्राप्त्यर्थं सर्वमंगलावाप्त्यर्थं लोकक्षेम अभिवृद्ध्यर्थं अस्यां विलायनगर्यां दुष्टनिग्रह शिष्ट परिपालनार्थम् आविर्भूतस्य श्री सिद्धिविनायकस्य आलय पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण अष्टबंधन महाकुंभाभिषेकाख्य महोन्नत महाशांतिक महामंगल वैभवे षष्ठकाल यागपूजां येभिः शिवाचार्यवद्भिः वेदविद्भिः अन्योन्य सहायेन कारयिष्ये. அவருடைய பெருங்கருணை திருவருளும் குருவருளும் துணை நிற்க பிலாய் ஸ்ரீ சித்திவிநாயக பெருமான் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் மிக உத்தமமான முறையில், ஏன்னா பொதுவாக நம்முடைய ஆகம சாஸ்திரங்கள் தர்ம சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் சொல்ற சத்காரியங்கள், நாம செய்ய வேண்டிய தர்மங்கள், அந்த தர்மத்துக்கான இடம், அந்த தர்மத்துக்கு தேவையான சாமகிரிகள், அந்த தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கிறதுனா தட்சிண பாரதத்தில் தான் கிடைக்கிறது. அதாவது ஆந்திரா கர்நாடகா, அதை விட உயர்வா தமிழ்நாட்டில் அந்த ஹோம திரவியங்கள்லாம் சொல்றேன். ஹோம திரவியங்கள் இந்த தர்ப்பையெல்லாம் கிடைக்கிறது. தர்ப்பையும் தீர்த்தமும் எந்த இடத்துல புனிதமா இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் க்ஷேத்திரம்னு பேர். நல்ல தர்ப்பையும் தீர்த்தமும் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் க்ஷேத்திரம். அங்கதான் நல்லவாலாம் இருந்து தர்ம காரியங்களை பண்ணணும். நாடுகள்லையும் இன்னைக்கு புண்ணிய தீர்த்தம் புண்ணிய இதெல்லாம் தர்ப்பைகள்லாம் நிறைய கிடைக்கிறதுனால நம்ம மக்கள் இன்னைக்கு உலகம் பூரா இருந்து அந்த தர்மங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுபோல இது பாரத தேசத்தினுடைய மத்திய பாகம். அதனால்தான் நான் கேட்டேன், இந்தியத்துக்கு சவுத்தா அல்லது நார்த்தா அப்படின்னா சங்கல்பம் மாறும். அது ரெண்டுத்துக்கும் கிடைக்கல, சாஸ்திரமே மாறுறது. நிறைய விஷயங்கள்லாம் விந்திய பர்வதத்தை தான் மத்தியமமா வச்சு நம்ம தர்மசாஸ்திரங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க.
ஏதாவது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற போது சொல்றேன். அப்புறம் நீங்க யாருக்காவது சொல்ற போது இது உதவுமோன்னு. அதனால அப்படி ஒரு புனிதமான ஒரு கைங்கரியத்துல இந்த பிள்ளையாருக்கு இது 5வது கும்பாபிஷேகம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய என்னமோ செஞ்சுட்டு நாமெல்லாம் சாதனை அப்படிங்கிறோம். நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம செஞ்சு வச்சிருக்கிற சாதனை என்ன, அதுதான் நமக்கு வந்து கின்னஸ். நம்ம ஆன்மீக கின்னஸ்ல என்ன இருக்குன்னா, கின்னஸ் சாதனையை நம்ம கோவில்ல தான் செய்வோம். நம்ம அடுத்த தலைமுறை, நம்ம மகன், நம்ம பேரன், நம்ம கொண்டு பேரன், அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் நாம வச்சுட்டு போற சொத்து எதுனாக்கா ஆன்மீகம், கோயில், இதெல்லாம். அத நம்ம மீனாட்சி சுந்தரமாமா பிலாயில வந்து தமிழ்நாட்டுல 1000 கோயில் பிலாயில வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த கோயில ஒரு சின்ன ஸ்தாபனத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த கும்பாபிஷேகத்தை பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் நம்முடைய மீனாட்சி சுந்தரமாமா. 85, 89, 90 தொட போற எல்லாம். அதுக்கே ஒரு நல்ல கைத்துட்டு அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரத்தை சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு ஒரு 5 நிமிஷம். ஏன்னா நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம், சாயந்தரம் நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு. இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கிற முக்கியமானவர்களுடைய ஆசி பாஷணமும் வாழ்த்துறையும் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம எல்லாரும் கேட்போம். जजमान और भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं गुरुजी जो बोले उसको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगी कि ये मानव धर्म जो है, मानव शरीर जो है, धर्म करने के लिए ही यहाँ उत्पन्न हुआ है। और धर्म क्या होता है? सत्कार्य और सद्धर्म से जब हम चलते हुए मंदिरों में, अपने घरों में अपना पूजा प्रतिष्ठा वगैरह सब जो करते हैं, यही सब धर्म कार्य है। साथ ही सबकी मदद करना, सबके लिए भले का सोचना और सबका अच्छा सोचना, ये सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। यहाँ तक कि भारतवर्ष की भूमि इतनी महान मानी जाती है, तपोभूमि यहाँ की इतनी महान मानी जाती है कि प्रति जगह पर पुण्य सलीला नदियाँ अपने पवित्र जलों को सबको देती हैं और पृथ्वी को शस्यशालिनी कर देती हैं। यहाँ की दुर्वा, यहाँ का जल विदेशों में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर भी इसी तरह से समग्र विश्व में भारत भूमि से ले जाए गए जल, दुर्वा और धरती के कणों को वहाँ पर पूजा जाता है और धर्म का कार्य समग्र विश्व में प्रति जगह किया जाता है। तो ये धार्मिक अनुष्ठान जो है नित्य प्रति चलता रहता है और हम देख ही रहे हैं। ऐसे विशेष अवसरों पर जैसे कुंभाभिषेक है, 8 काल की पूजा से इससे पहले पूर्वांग पूजा, ये सब कर हम सभी स्थलों को शुद्ध करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और ऐसे में इस महाकुंभाभिषेक में यहाँ पर दक्षिण से पधारे हुए गुणी और ज्ञानी शिवाचार्य जनों के द्वारा ये कुंभाभिषेकम किया जा रहा है। साथ ही मीनाक्षी सुंदरम मामा और शारदा मामी जैसे एक वयोवृद्ध दंपति हमारे साथ यहाँ पर रहकर इस कार्य को पार्वती परमेश्वर की तरह देख रेख करके पूरा अनुष्ठान में हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसे दिव्य दंपति को हम यहाँ से ही सादर प्रणाम करते हैं और आगे की बात के लिए उन्हीं को हम माइक सौंपते हैं। ஆசீர்வாதமும் வரவேற்போம். என் மனைவியும் நானும் 1969 இந்த நிலத்தை அப்படி இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனிலிருந்து லீஸ் மூலம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் இங்கே கோவில் எழுப்பதற்காக பிரயாசை எடுத்துக்கொண்டோம். அந்த சமயத்தில் இருந்த ஜெனரல் மேனேஜர் ஜெகத்பதி IAS அவர் எங்களுக்கு நிறைய உதவி செய்தார்கள். தமிழ்நாட்டில் சிறந்த சபதியான ஸ்ரீ பத்மஸ்ரீ கணபதி சபதிகள் இந்த ஆணையத்துக்கு பிரதான சபதி. அவர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்தில்தான் இந்த கோவில் இப்பொழுது எழுந்திருக்கிறது. அவரே இந்த கோவிலில் எந்த விதமான பூஜை செய்ய வேண்டும், எந்த மாதிரி விக்கிரகங்கள் இருக்க வேண்டும், அது அனுஷ்டானங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற பட்டம் ராமலிங்க சிவாச்சாரியார் தலைமையில் மற்றும் சேலம் சிவஞான சம்பந்த குருக்கள், சிவானந்த குருக்கள் அவர்கள் தலைமையிலும் இந்த பாலாலயம் நடந்தது. பிறகு 1977 இந்த பெரிய கோவில் எழுந்த பிறகு மகா கும்பாபிஷேகம் முதல் தடவையாக செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து 12 வருஷத்துக்கு சார்பாக 2025 இப்பொழுது 5வது கும்பாபிஷேகம். சந்தோஷம். மாமாவுடைய பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு.
टाइप के लोगों को ऐसे एक मंदिर की बहुत अधिक आवश्यकता थी। तो ये आज जो हम संरचना देख रहे हैं मंदिर की, जो आज तक हमको अनुग्रहित करता आ रहा है, ऐसी संरचना तैयार की गई और फिर उसका कुंभाभिषेक किया गया। 1994 तक ये जर्नी चलता रहा और स्वामी मलय से हमारे बीच पधारे श्री शिवानंद शिवाचार्य, जिन्होंने इस मंदिर को देखकर ये इच्छा जाहिर की कि इस तरह से इसमें और भी कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं, और फिर उनके ही निर्देशन में बाद का कुंभाभिषेक और आज भी उसके बाद बीच में एक बार 2014 में भी इन्हीं के निर्देशन में हुआ और अभी भी आज हम उन्हीं के निर्देशन में ये कुंभाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। और एक बात बताने की बहुत बड़ी ये है औचित्य है कि ये स्वामी मलय से पधारे हुए शिवानंद शिवाचार्य जो हैं, इनके गुरुकुल से प्रशिक्षित कितने ही स्टूडेंट्स आज विदेशों में भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान यज्ञ वगैरह करवा रहे हैं। और अभी उन्हीं में से हमारे पास भी वेद विज्ञान ज्ञाता रोज अलग अलग बैचेस कर रहे हैं यहाँ पर, वो सब इन्हीं के कुशल निर्देशन और इन्हीं के गुरुत्व का कमाल है। तो आप सबको मीनाक्षी सुंदर मामा की ओर से अनेकानेक आशीष प्राप्त हो, और आप सबसे वो एक ही विनती करते हैं कि हर धर्म के अनुष्ठान में प्राय मिलकर सब लोग एकजुट होकर के इन कार्यों को पूरा करें, प्रतिदिन कोशिश करके मंदिर जरूर आए। नमः पार्वती पतये। அடுத்ததாக இந்த மகா கும்பாபிஷேக 20 வருஷமா சத்தீஸ்கர் ஸ்டேட்ல நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். சத்தீஸ்கர்ல இருக்கிற தெற்கு வடக்கு எல்லா மாவட்டங்கள்லையும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களாகவும் சிஓ ஜில்லா பஞ்சாயத்தாகவும் பணிபுரிஞ்சிட்டு கடந்த 8-9 வருஷமா ராய்ப்பூர்ல வந்து ஸ்டேட் லெவல் போஸ்ட்ல இருக்கோம். இப்போ 2 பேருமே மாநில அரசினுடைய செயலாளர் அந்தஸ்துல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். விலை துர்க் டிவிஷன்லேயே நாங்கள் எங்கேயும் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் வேலை பார்க்கல. ஆனால் விலை வந்து எங்களை வந்து குழந்தைகளுடைய கல்விக்காக அதனுடைய ஆகர்ஷண சக்தியில் எங்களை இங்கே இழுத்துட்டு வந்து 3 வருஷமா இங்கே இருக்கோம். இந்த 3 வருஷத்துல we fell in love with Bilai, more so with Ganesh Mandir. என்னுடைய அன்னையார் வந்து தினசரி சித்தி விநாயகர் சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் காலையில சாப்பிடுவாங்க, டெய்லியும் வந்துட்டு இருக்காங்க. अब मैं हिंदी में जाना चाहूँगा कि हम लोग मूल से तमिलनाडु से हैं। जैसे अभी बोला गया कि कई बिलायंस इतने साल से यहाँ रह के अभी अपने अपने पारिवारिक कारणों अन्य जगह चले गए हैं, जो यहाँ पर आज इस विशेष के लिए यहाँ पर आए हैं। हम यही कह रहे थे कि हम नए बिलायंस हैं जो अपने वही कारणों से यहाँ का शिक्षा का जिस प्रकार के व्यवस्था है उसी को लेकर के यहाँ पर आए हैं। पिछले 20 साल से हम छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में हम दोनों पति पत्नी कलेक्टर के रूप में अन्य पदों में रह चुके हैं। अभी हम मंत्रालय में सचिव स्तर पे काम कर रहे हैं। इस मंदिर से हमारा जुड़ाव इस तरह का है, मैंने जैसे तमिल में कहा था कि मेरा माता जी प्रत्येक दिन यहाँ पर मंदिर आती हैं। सुबह यहाँ पर आके सिद्धि विनायक स्वामी का प्रणाम करने के बाद ही उनका अपना सुबह का जो है नाश्ता करते हैं। इस तरह का उनका एक अच्छा लगाव इस मंदिर के साथ है। वो हमारा परिवार के प्रमुख हैं, तो हम सब उनके साथ हैं और उन्हीं का मार्गदर्शन में हम चलते हैं। और इस मंदिर का इस प्रकार का जो 5वां अष्टबंधन स्वर्ण बंधन महाकुंभाभिषेकम हो रहा है, इस पूरा कुंभाभिषेकम का शुरुआत से जुड़े रहने का एक भाग्य जो है हमें मिला है, वो भी भगवान का आशीर्वाद है। जैसे कल स्वामीनाथन जी कह रहे थे कि अनेक लोग हैं इस तरह का यहाँ पर आकर के इस मंदिर के लिए अपना तन मन और धन से मदद करने के लिए, हमें लगा कि हम इसके लिए भाग्यशाली है कि हमें इस तरह का एक मौका दिया गया था, बताया गया था कि यहाँ पर कुंभाभिषेकम हो रहा है, तो हम चाहते हैं आप भी जुड़े रहें। तो हमें लगा कि हम भाग्यशाली है, तो हम इसमें जितना हमारे तरफ से हो सकता वो मदद करने के लिए खड़े रहे हैं। हम और आप में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जितना हमारे तरफ से हो सकता उतना मदद हम जरूर करने के प्रयास करते हैं। इतने लोग यहाँ पर पूरे लगाव के साथ लगे हुए हैं। ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन सब यहाँ पर उन सबके बारे में, उनके परिवारों के बारे में मुझे जरूर उल्लेख करना चाहिए। इतना जो इसमें श्रद्धा जो है, मंदिर से जो लगाव है, उनके
निश्चित रूप से उल्लेखनीय है और पूजनीय है। और इन सब के ऊपर मैं स्वामीनाथन जी को जरूर कहना चाहूँगा, मैं इनको अभी नहीं लगभग 10 साल से जानता हूँ। जब यहाँ पहली बार कल्याणमालय हुआ था, ये कार्यक्रम सन टीवी का 2015-16 में, उस समय मैं कलेक्टर बिलासपुर था, मेरा पत्नी कलेक्टर रायगढ़ थी। उस समय हमको यहाँ पर उस कार्यक्रम के लिए हम जितने भी तमिल ऑफिसर्स थे पूरे प्रदेश में यहाँ पर आए हुए थे। मैं तमिल मालय में, कल्याणमालय में मैं भी भाग लेने का मौका मिला। तब से मैं इनको जानता हूँ और इनका श्रद्धा को जानता हूँ। इन्होंने मुझे जो है भिलाई का परिचय दिया और उसके बाद आज तक हम जुड़े रहे हैं। और इतना सिंपल, इतना डेडिकेटेड जो गणेश जी का भक्त है, मैं वही अभी जस्ट बोल रहा था उनको कि कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम को, कल अर्धरात्रि, अल सुबह, फिर अभी, वो सब जब भी हम आते हैं उनको यहाँ पर देखते तो घर गए भी कि नहीं गए, वो मंदिर में ही है और इतना श्रद्धा के साथ वो लगे हुए हैं। केवल स्वामीनाथन सर नहीं है, उनका मैडम भी, उनके पूरा परिवार इस पे लगे हुए हैं। इस तरह का एक लीडर होने के वजह से ही ये पूरा कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें भी मदद करने का, कोई अपना सेवा देने का कोई मौका मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन कोई एक आदमी चाहिए जो लीड करना चाहिए, जो कोई एक आदमी चाहिए जो वहां पर, अब वही जो बात है कि तन मन और धन से, कई लोगों के पास धन है लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके पास या समय देने का स्वभाव नहीं है। और कई लोगों के पास तन मन है लेकिन धन भी चाहिए होता है। सभी व्यवस्थाओं में बहुत भारी समस्या तो धन की होती है। कोई ऐसा एक परिवार जो धन वो पहले और तन मन पूरा अपना पूरा अर्पित करके काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। जितना भी उनको सराहना किया जाए वो कम ही होगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा एक परिदृश्य, एक अनुभव हम छत्तीसगढ़ में आके रहते हुए भी हमें ऐसा लगता है, पिछले 10 दिन से मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि हम तमिलनाडु में ही हैं। जिस प्रकार के यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है वो हमारे शिवाचार्य जी के और उनके पूरे शिष्य, उनका जो पूरा ग्रुप जो आए हुए हैं, ऐसा हमको महसूस करा रहे हैं कि जैसे हम तमिलनाडु में ही किसी एक शहर में, एक गांव में है जहां पर पूरा कुंभाभिषेकम हो रहा है। ऐसे कुंभाभिषेकम को इतने नजदीक से, इतने रह के देखने के भी एक मौका जो है सबको सभी हर बार नहीं मिल जाता है। तो इसलिए जो है मुझे ये एक बहुत परिपूर्ण और आनंदित अनुभव का एक मौका मिला है। भगवान के तहे दिल से मैं आभार रखूंगा हमेशा उनके चरण में। और इसका जो मौका दिया है शिवाचार्य जी और उनका पूरा जो टीम है, उनका मैं निश्चित रूप से प्रणाम करूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसा एक अच्छा धार्मिक अनुष्ठात्मिक अनुभव हम सबको उन्होंने कराया है। और इतने लगन से ये पूरे भिलाई के वासी यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे हम शुरू से बात कर रहे थे कितना भीड़ आएगा, कैसे उसकी व्यवस्था करना चाहिए, उसको लेकर के इतना अनुशासित भीड़ हम सब मिल करके यहाँ पर अपने आप को कंडक्ट करा रहे हैं। उसके लिए भी आप सब धन्यवाद के और बधाई की। நிஜமாவே ரொம்பவும் ஆச்சரியமா இருக்கு. இன்னைக்கு நான் இந்த விழாயில விநாயகர் சன்னதிக்கு நேர வந்து நிக்கிறேன்னா என்னன்னு, ஏன்னா எனக்கு 101 வயசுல எங்க மாமனார் இருக்கார், அவரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ அவரை விட்டுட்டு வருதுன்னா எப்பயும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரலாம், ஆனா அவர் என்ன விட மாட்டார். இப்பவும் அம்மா எங்க போயிருக்கான்னு என் பொண்ணுகிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கார். பொண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் தான் விட்டுட்டு நான் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அம்மா வந்துருவாளோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். அவர் டிஸ்டர்ப்டா இருக்காரோ இல்லையா, நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கேன் அவரை விட்டுட்டு வந்து. அதே மாதிரி பழகிட்டோம். அது இல்லாம இப்ப நான் எங்க அப்பாவை பத்தி ஒரு 2 வார்த்தை பேசணும் இந்த விநாயகர் சன்னதியிலங்கிறதுக்காக தான் இங்க வந்து நிக்கிறேன். நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் பிறந்தேன் அப்படின்னு. பாலாலயம் ஃபர்ஸ்ட் கட்டி ஃபர்ஸ்ட் மீனாட்சி சுந்தர மாமா, சந்திரசேகர மாமா இவரெல்லாம் மறக்கவே முடியாது. அவ வந்து நின்று அங்க எங்க அப்பா காலையிலயும் சாயந்தரமும் வந்து அங்க பூஜை பண்ணி எங்க அம்மா பிரசாதத்தை ரெடியா எடுத்து வச்சு, பிள்ளையாருக்கு வழக்கேற்றத்துக்கு நேரம் ஆயிடக்கூடாது, நீங்க சீக்கிரம் கிளம்புங்க. ஒண்ணு அப்பா எங்கேன்னு போனா கூட நான் 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறது நான் வந்து இந்த கோவில திறந்து வழக்கேற்றி பாலாலயத்துல உட்கார்ந்துருப்பேன். வாசல்ல இது ரவிநாராயண், ரவி சேகர் எல்லாரும் வந்து வேதம் கத்துப்பா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அன்னைக்கு அப்பா கற்றுக் கொடுத்தது இன்னைக்கும் எனக்கு அப்படியே மனப்பாடமா தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் அப்படியே ட்ரீம் மாதிரி இருக்கு.
அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து இது செக்டர் 5 பிள்ளையார் கோவில் தானோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா பண்ணியிருக்கா, ரொம்ப அருமையா பண்ணியிருக்கா. நிஜமாவே நான் ரொம்ப லக்கி. பிள்ளையார் 2 நாள் முன்னாடி குதிரை சொன்னேன், எங்க மாமனாருக்கு நல்லபடியா இருந்து என்ன வந்து நிஜமாவே நீ தர்ஷனம் கொடுக்கணும்னா என்ன டெஃபினட்டா நீங்க கூப்பிடுவே அப்படின்னேன். இன்னைக்கு இங்க நிக்கிறேன், எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கிற பிள்ளையார் வந்து அதை நடத்திட்டார். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப வருஷக்கணக்கா ஆச்சு நான் இந்த பக்கம் வந்து மெயினா மீனாட்சி சுந்தர மாமா மாமி எல்லாம் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பிரசாதம் பண்ணணும்னா கிரகஸ்தாலாம் வேண்டிடுவா, 1001 குறைக்கட்டை பண்றேன், 1008 குறைக்கட்டை பண்றேன், 5008 குறைக்கட்டை பண்றேன்னு. ராத்திரி ஃபுல்லாவே உட்காந்து எங்க அம்மா மடியா உட்காந்து குறைக்கட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா. காலம்பரம் முடியணுமே வேண்டிட்டு இருக்காளே பிரசாதம் பண்ணுமேன்னு. அதுல வந்து மாமா எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிப்பான், மாமா மாமி எல்லாருமே, எல்லா உபாத்தியாயக்காரா அவ வைதிகா அப்படின்னு கிடையாது, அப்பா வைதிகமா இருந்தா. ஸோ அப்படின்னு கிடையாது, எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி பகலா எல்லாரும் உட்காந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் இருந்தா. ஆத்துல யாரும் வந்தாலும் சாப்பாடு போடாம அனுப்ப மாட்டா. அப்பா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க மாட்டா, வந்திருக்க வாழ்க்கை சாப்பாடு போட்டு அனுப்பு, வெறும் வயசோட அனுப்பாதேன்பா. அது மாதிரி குடும்பம் ஒரு குடும்பமா பழகிட்டோம். அதுல எல்லாரும் தெரிஞ்சவாளை பார்த்ததுக்கு நிஜமாவே கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அடுத்த 10 வருஷம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் என்ன சேஞ்சஸ் ஆகும் தெரியாது. இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ஃபார்ச்சுनेटा फील பண்றேன். सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं आप लोगों को, बहुत लोगों ने देखा होगा ये छोटा मंदिर बालालय में छोटा सा था, शेड डाला हुआ था और छोटा सा मंदिर था गणेश का यहाँ पर। वहीं पर मेरे पिताजी पूजा करते थे। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, और शाम को और सुबह आके यहाँ बैठ के पूजा करते थे और मंत्र वगैरह सबको सिखाते थे, वेद मंत्र वगैरह सबको सिखाते थे। तो मैं अभी चेन्नई में हूँ, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। मेरे फादर इन लॉ का एज 101 है, उनका देखभाल करते हुए मैं वहाँ हूँ। उनका जून में 101 कंप्लीट होकर 102 हो जाएगा। मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ, वो तो डिस्टर्ब है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि उनको एकदम आदत पड़ गया उनके टाइम टेबल के अनुसार उनको सब दे के सब कुछ करके। तो 2-3 दिन पहले भी मेरे को विश्वास नहीं था, बुक तो कर रही थी 15 दिन पहले, लेकिन पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं, कहाँ कैसे रहेगा सिचुएशन, ऐसा करके भगवान से मैंने बोला। मेरे पिताजी ने पूजा किया है यहाँ दक्षिणामूर्ति सन्निधि में बैठ के जब हम करते थे, मेरे को इच्छा वहाँ आने का, तुम्हारा मर्जी है, मेरे को वहाँ बुलाओगे। आज मैं यहाँ हूँ, विश्वास नहीं हो रहा मैं यहाँ हूँ, बस भगवान का आशीर्वाद है जिसके कारण मैं आज पहुँची। और बहुत से पुराने लोगों का देख के बहुत खुशी हुआ, मैं नहीं जानती थी कि मैं सबसे मिल पाऊंगी, बहुत अच्छा लगा। और मीनाक्षी सुंदर मामा और चंद्रशेखरन मामा सब लोग, सब पारिवारिक, मतलब नहीं लगता कि वो उपाध्याय करते थे और हमारे पिताजी उनके घर में जाके पूजा करते थे, ऐसा नहीं था। सब एक फैमिली एटमॉस्फेयर ही था हम लोगों का। और आज मंदिर जो उतना छोटा सा मंदिर जो पहले मेरे पिताजी ने पूजा किया, आज इसका इतना बड़ा, वो देख के बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और जो लोग कर रहे हैं उन लोग तो भगवान का आशीर्वाद उन लोगों को हमेशा उनके साथ है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ इन लोगों का जिन्होंने आज मेरे को मौका दिया कि मैं अपने पिताजी के बारे में 2 शब्द आप लोग के सामने शेयर कर पाई। मैं हार्डली 5% भी मेरा जो योगदान नहीं है उसमें, फिर भी भगवान ने मेरे को एक बहुत बड़ा मौका दिया, तो वही मैं बोलूँगा। मैं उससे कोई ज़्यादा ऐसे कोई हाँ, ये जो अपना जो मम्मी बार बार जो बोलती है, ये उनका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया, गुरु प्रसाद नहीं है, वो वर प्रसाद है, ये मंदिर के लिए। और ये वर प्रसाद ये गुरु जी ने तैयार करके यहाँ भेजा है। अब देखिए ये मंदिर का ये जो हो रहा है, इसमें पूरा उन्हीं की वजह से जो हो रहा है। और ये नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, आज सुबह हम लोग रात को ये बैठ के वहाँ पे स्वर्ण बंधन का जो बनाना था बना रहे थे, तब ये बोले उसमें को थोड़ा से बनाने में लगाने में थोड़ा से तकलीफ हो रहा था, तो वो क्या बोल रहे थे, अगले बार कैसे करना करके डिसाइड कर दिए। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगले बार इस टाइप का घर के हाल थोड़ा से ज्यादा बना दी। बस देखिए इतना आगे का सोच है इनका। तो बाहर से जो आए हुए हैं रश्मि मैडम और बीना, जो बहुत लोग आए हुए हैं, वैद्यनाथन सर, उनका मिसेस फैमिली, और अपना जो बस जयराम साहब, बोलना नहीं चाहिए इसके सामने में,
ये जो कुंभाभिषेक का मेन जो है, इसके जो सहयोग जो है इन्होंने किया, इसलिए क्या मेरे को भी थोड़ा से मनोबल बढ़ गया था, तो थोड़ा से आगे बढ़ के तो और अच्छा काम करेंगे करके यहाँ तक लेके आया। तो ये उन्हीं की कृपा है। तो आप सब आके इसमें जो भाग लिए हैं, ये गुरुदेव, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। इन्होंने जितने भी जो यहाँ पंडित लोग आए हैं, इन्हीं का देन है। और इन्होंने ये जो कोर्स इन लोग जो पढ़ते हैं, 8 से 10 साल कोर्स पढ़ते हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे जो पंडित लोग हैं। तो ये कोर्स के लिए क्या है, खाना पीना रहना कपड़ा सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड करते हैं। छोटे चीज नहीं है, अपने 2 बच्चे पैदा पाल नहीं पा रहे हैं, तो आप देखिए कम से कम अभी भी कभी भी जाएंगे तो कम से कम 25 बच्चे हैं वहाँ पे, उस जो पाठशाला में। हमेशा इनके यहाँ पे आप वेद पढ़ते रहेगा तो सुनने में भी बहुत आनंद आएगा। तो मैं कई बार गया हूँ, जब जाते तो एक बार जाके आते हैं तो अच्छा लगता है। अभी इन्होंने बहुत बड़ा मंदिर भी बना रहे हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा मंदिर, वेद पाठशाला, वहाँ पे गौशाला, क्या क्या बना रहे हैं। तो इस उम्र में इतना बड़ा जो रिस्क लिया है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा शिवलिंग जी वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं वर्ल्ड में। अब सोचिए, अब सबको मैं रिक्वेस्ट करेंगे एक बार ये वहाँ पे जाना चाहिए। ये तो ऐसे मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से बना रहे हैं, ये 5वां धाम हो जाएगा वो जगह। इस टाइप का जो काम करते हैं मिस्टर सारवण से जोड़ रहे कार्य होने के लिए। इसके अलावा भी कई लोग, एक सुनील कुमार, उसका नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और उसमें जितने काम कर रहा है यार, मेरे को 50-60% का मेरे जो बर्डन को काम कर दिया। वही एक प्रवीण करके, प्रवीण करके जो आया था, पूरा आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक का काम जो है उसी ने पूरा, उसने पिछले 15-20 दिन से वहाँ खड़े होके वो काम कर रहे हैं, रात दिन खाना पीना। और खर्चा किया तो पता तो नहीं चल रहा है, तो पूरा सहयोग किया है। ये सब मिलके अपन कर रहे हैं, इससे थोड़ा से आसान से ये प्रोग्राम हो गया। 2 दिन और बचा है। 2 तारीख को बहुत बड़ा काम होने वाला है, सुबह 9:30 पे। अब सबको वहाँ पे 8:30 बजे वहाँ आ जाइएगा। तो ये दोबारा मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा मतलब 12 साल बाद मिलेगा। आज जो शाम को जो है, शाम को 4:30-5 बजे अयप्पा मंदिर से बहुत बड़ा सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो सिद्धि रिद्धि का शादी विवाह होने वाला अपना महाराज का, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं। सब शामिल हो जाइए उसमें। बहुत ज्यादा बात करें तो कम करके खत्म करो, तो खत्म करते रहे। लेकिन 2-3 आदमी तो इम्पोर्टेंट है, तो बोलना वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, अपने नीरज पाल जी को क्या बोलना चाहिए, उनको भाभी के बीच में तबीयत खराब हो गया था, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। और जो मैं प्रार्थना करता हूँ, सब पूरा यहाँ पे जितने अपना जो गुरुजी और जितना परिवार पूरा प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जल्दी और ठीक होके मंदिर अपना स्वयं यहाँ पे आएंगे। सबसे भी अनुरोध करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करिए। और उन्होंने ये जो बैठे हैं, ये परमानेंट शेड बना है, और अब मैं कभी भी कुछ भी बोलते भाई 10 दिन में बना के दिए, तो उम्मीद कम था। अब चिंता मत करो, भगवान करेंगे। सही में ये भगवान ने बनाया है। जिसमें जो प्रॉब्लम ये सब यागशाला बना दिया, उसके बावजूद भी आके बीच में अंदर घुस के बना दिया। पता नहीं कैसे, हम लोग भी क्या इंजीनियरिंग काम करते हैं, इस तो कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने किया, भगवान ने कराया मेरे से। आज जब भी चाहिए मेरे को, अभी देखिए कल शाम को थोड़े से चावल कम हो गया, अब 5 यहाँ पे खाने वाले भी लोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, होना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं आज लोग आ जाए। थोड़े से चावल कम हो गए, बात कर रहे थे, तो मेरे को चाहिए, बोले कितना चाहिए, तो आके एक ट्रक में उतार गया। कहने का मतलब ऐसा मन है उनका, उन्हीं की वजह से भी ये जो है बहुत इसलिए हुआ। ये सब तो ठीक है। उमा पांडे जी को आप देखें तो
प्रॉब्लम क्या है, इसकी रिटायरमेंट भी होके यहाँ पे मंदिर के साथ शामिल हो गए हैं पूरा। अभी इसके बाद तो पता नहीं है, मैं कल परसों बताया था। तो आप ये क्या है, भाषण से ज्यादा अभी उपन्यास करने लगे हैं। बहुत अच्छा उपन्यास कर रहे हैं। बोले चलो अपन हिंदी लेके बढ़ जाते हैं, मैं एकदम माउंट रहूंगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आप डिसाइड करके बोलते जाओ। तो वैसे करके हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी आगे अगले प्रोग्राम ऐसे होगा। तो जो देखिए, ये अकेला तो मेरे से इतना बड़ा काम जो अनपढ़ साहब बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, नहीं मैं अकेले में नहीं क्यों। मेरे जो कमेटी मेंबर है, मेरे जो प्रेसिडेंट है, मैं खुद भी बोल रहे हैं तो कभी मना नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा मेरे को सपोर्ट मिला, मेरा वाइस प्रेसिडेंट चंद्रमौली और ये जो ट्रेजरर श्रीनिवासन साहब और कमेटी मेंबर। अभी ये जो लेडीज लोग पिछले 1-1.5 महीना से ऐसे काम किए जो मेंबर्स कांटेक्ट करके जोरदार चालने होना चाहिए। तो वो लोग बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो वो अगर वो नहीं होता तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता था। इवन भीड़ कंट्रोल करने से लेकर के और प्रसाद डालने से लेकर के सबको बहुत कुछ काम किए हैं। तो उनके लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो इतना काम किए हैं। तो बाकी जो बड़ा धन्यवाद देना पड़ेगा सभी यहाँ पे आसपास में बाजू वाला मंदिर में मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आंध्रा भवन में और सब कमेटी मेंबर्स में इतना सपोर्ट किया।
हुं फट् स्वाहा ह्रीं कृष्णवाससे सिंहवदने महावदने महाभैरवी शत्रुकर्म विध्वंसने परमन्त्रच्छेदने सर्वभूतगमने सर्वभूतान् बन्धबन्ध विज्ञान चिन्ति चिन्ति सर्वज्ञाते निकृत निकृत सर्वदुष्टान् भक्ष ज्वालालिप्ते नमस्ते करानन्त्रे प्रत्यङ्गे स्वाहा ॐ सिं सिं क्षुरिगात्राय हुं फट् स्वाहा महेशाय विद्महे वाक्यशुद्धाय धीमहि शिव प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः स्वाहा திருநாகப்பெருமான் திருக்கோவில் மகாபாவே யாகசாலையில் 6ஆம் கால யாக பூஜையை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த யாக பூஜையில் அனைத்து யாக குண்டங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் பூர்ணாவதி நடைபெறும். அதற்கு முன்பாக சித்திவிநாயகர் பெருமானுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிற 9 யாக குண்டங்களிலும் பட்டு வேட்டி ஹோமம் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து மகா பூர்ணாவதி நடைபெறும் என்பதனை எல்லோருக்கும் அறிய தந்து வழிபாடு நடக்கிறதுனா காரணம் அவரோட பிரசன்ஸ் மட்டும்தான். இன்னைக்கு இதே நாளைக்கு தேதியில இன்னும் 4-5 கும்பாபிஷேகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் கூப்பிட்டாங்க அண்ணாவை. நான் சொல்லிட்டேன், நீங்க இங்க விழாய் தான் வரணும், எங்களுக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு. அண்ணாவும் நம்ம பிள்ளையார் மேல இருக்கிற ஒரு ஆசை, ஒரு பக்தி அப்படிங்கிறதுல வேற எங்கேயும் போல நமக்காக பிள்ளையார் மட்டும் இல்ல, நம்ம விழாய் தமிழ் மன்ற நிர்வாகிகள் பக்தர்கள் மேல உள்ள பிரீத்தியில இங்கேதான் வருவேன் அப்படின்ட்டாங்க. இதெல்லாம் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். அண்ணாவோட நினைச்சு பாருங்க, அண்ணா இங்க இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. அவ்வளோ நம்ம நினைச்சு இவ்வளவு பெரிய ஒரு கிராண்டா ஒரு ஃபங்க்ஷனா நடந்திருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு யோசிக்க வேண்டியதுதான். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அண்ணாவோட ஆசீர்வாதத்துல தான் இவ்வளவு தூரம் நடந்துட்டு இருக்கு. முதல்ல பிள்ளையாரோட ஆசீர்வாதம், அப்புறம் அண்ணாவோட அனுகிரகம், அண்ணாமணியோட அனுகிரகம். எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டே இருக்காங்க. இந்த நேரத்துல நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நிர்வாகத்தோட ஒத்துழைப்பு இருந்ததுனாலதான் நம்ம ஒரு ஃப்ரீயா இது பண்ண முடியும். நம்மளுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க. செக்ரட்டரி சார் இருக்குதான் அதை சொல்லணும். पुष्पावदे प्रसोदे भरे
दीपं दर्शयामि गोर्धवत्सवः अमृतोपहारं निवेदयामि प्रजापतेनत्वमेधान्यो विश्वाजातानि वरिता बभूव सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जानाय नमो नमः ओम तवाय नमः सूर्यो अजायत
स्वायाः जनार्दनकमलयोः नामार्चनं करिष्यामः ॐ ॐ ईशानमूर्त्याय नमः ॐ ह्रीं तत्पुरुषाय नमः ॐ हुं महोरहृदयाय नमः ॐ ह्रीं वामदेवमुख्याय नमः ॐ हं सत्योजातमूर्तये नमः ॐ ह्रीं शिरसे नमः ॐ शिखायै नमः ॐ ह्रीं कवचाय नमः ॐ नेत्रेभ्यो नमः ॐ सहस्राय नमः विघ्नेश्वराय नमः नानाविधपरिमलपत्रकुसुमानि समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः बलतमादित्यं नागवल्लीतमेतत् कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छताम् कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि यो मां वट्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् प्रथमान् भवति चन्द्रमाव अपां वट्पो पुष्पवान् प्रजावान् प्रथमान् भवति एवं वेद यो मामायतनं वेद आयतवान् भवति गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमान् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदरिष्टे दशादनम् सिद्धि विघ्नेश्वराय नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय देवानन्दमोदगजानने वल्लभाप्राणान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम् श्रीगणेश्वराय नमः दीपं दर्शयामि रुद्रासुरमोहनिवस्तकं नर्भमारुतं वृक्षकेशे त्वं वादेन षडैयादिसङ्कयस्तं भूषाविदधपादिसम्पना आहोराजानमध्वरस्य रुद्रकं होदारकं सत्ययशकं रोदस्योः अग्निं पुरातयत्पादचित्तादिरञ्जनो भवदे गणर्भा यो वेदादो सरब्रह्मतो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटनेन स अपरस्य महेश्वरः सिद्धि विघ्नेश्वराय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं